So good morning to all of you students. In this lecture today we are going to discuss about the mean of chapter number 14 statistics. So students, so in the previous lecture we already started this chapter statistics and we discussed in that lecture that what are the basic meanings of statistics and what we are going to do in this chapter statistics, what are the meaning of measures of central tendency. So, in the first section of measure of central tendency, we discuss about the mean. Mean is also known as the average. So, students, first we have discussed in that lecture first method, which is direct method, and remaining two methods we have to discuss in this lecture, students. So, what was the direct method, students? Please see here. Direct method is x bar, mean is denoted by x bar is equals to summation. This symbol we have discussed in previous lecture. This symbol denotes the summation or sigma, and this is the meaning of addition. So this is summation of fi xi. That means fi means the frequency given, xi means the midpoint of the class interval. So first of all we have to multiply fi into xi. जो आपका fi into xi का multiplication आएगा उनका आपको sum करना है. That means sigma and divided by summation of fi. That means we have to divide by sum of all the frequencies. Sum of all the frequencies. Students, you can see here आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा. क्लास इंटरवल गिवन होंगे स्टूडेंट्स. क्लास इंटरवल में लाइक दिस 0 5 5 से 10 10 से 15 15 to 20 लाइक इस तरीके से आपके क्लास इंटरवल गिवन होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये गिवन होगा. सेकंड गिवन होगा आपके पास फ्रीक्वेंसी fi ना. फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. सपोज की फ्रीक्वेंसी 3ac 5ac 2ac 10 ये फ्रीक्वेंसी गिवन होगी स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट, so आपको ये two columns are given in the question. So first of all you have to find the xi. So what is the meaning of xi? Xi is the midpoint of this class interval. What can we do? Find the midpoint. So midpoint is called lower limit plus upper limit divided by 2. Lower limit plus upper limit divided by 2. See here, lower limit plus upper limit divided by 2. Lower limit is there 0, upper limit is 5. So 0 plus 5 divided by 2. So 0 plus 5 divided by 2 you get 2.5. What it is, students? 5 plus 10 15. 15 divided by 2 that is 7.5. 10 plus 15 25. 25 divided by 2 that is 12.5. What it point is, friends? एक तरीका ये हो गया. सेकंड वे क्या होगा, आप फर्स्ट आपने कैलकुलेट कर लिया. अब आप चेक कीजिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट द डिफरेंस इन द क्लास इंटरवल्स आर ऑफ 5 5 का डिफरेंस है. सो यहाँ पर फर्स्ट आया 2.5, तो आप 5 ऐड करते जाइए. 2.5 में आप 5 ऐड करेंगे यू गेट 7.5. 7.5 में प्लस 5 करेंगे यू गेट 12.5. जो नेक्स्ट आएगा 12.5 प्लस 5 17.5. व्हाट इट इज स्टूडेंट्स? इस तरीके से आप क्लास मार्क, इसको हम क्लास मार्क भी बोल सकते हैं और मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं. सो एक्स आई कैलकुलेट कर लिया हमने. फिर आपको क्या करना है, फोर्थ कॉलम में यू हैव टू कैलकुलेट fi into xi. fi और xi का मल्टीप्लाई करना है. मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 2.5 into 3 plus 7.5 5 5 25 5 7 35 plus 2 7 37. इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, है ना. 2 5 जा 10 2 जा 4 plus 1 5 2 1 जा 2 ना. ये हो जाएगा आपके पास कितना 175. इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है fi. So on the multiplication of fi into xi you get a column of fi into xi. Then आगे वाला स्टूडेंट्स टोटल. You have to write here total. इस fi वाले कॉलम का जब हम टोटल करेंगे हमें मिलेगा सिग्मा fi. इनका टोटल करने पर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? समेशन ऑफ fi. जब हम इस कॉलम का एडिशन करेंगे टोटल करेंगे सो वी गेट हियर समेशन ऑफ fi into xi. ये हमें मिलेगा. और आफ्टर दैट यूजिंग दिस मेथड आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है. समेशन ऑफ fi into xi न्यूमरेटर में रखना है, इस वैल्यू को आपको डिनोमिनेटर रखना है. आफ्टर द डिवीजन यू गेट योर मीन ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इट इज स्टूडेंट्स? Any problem? So this is our first method, basic method, which is called direct method.
जनरली दिस मेथड इज यूजफुल व्हेनेवर द वैल्यूज आर स्मॉल। आप देखेंगे 0 से 5, 5 से 10 बहुत ही स्मॉल वैल्यूज है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कह दूं कि 0 से 100 या 100 से 200, 200 से 300, इस तरीके से क्लास एंटर होते हैं, यहाँ पर वैल्यूज ग्रेटर होते हैं। तो जब जनरली वैल्यूज ग्रेटर होती हैं, where we use the second method or stack derivation method, assumed mean method और stack derivation method। so assumed mean method में क्या डिफरेंस आ रहा है, डायरेक्ट मेथड में तो हमने सीख लिया है ना, ये वाली टेबल बतानी पड़ेगी। अब assumed मेथड में क्या डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे x का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। बेटा यहाँ पे आपको fi तो पता है, fi तो फ्रीक्वेंसी है। अब ये और यहाँ पे कैपिटल A क्या है, सो आप लिख सकते हैं कैपिटल A इज इक्वल टू assumed mean, capital A is assumed mean and what is di? Di is the deviation, di is called deviation, deviation का है, इसका फॉर्मूला क्या होगा डेविएशन का, xi minus a, xi minus a, xi minus a। स्टूडेंट्स आपको करना कैसे है, तो आप देखेंगे fi xi, अब ये मेरे इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कहीं भी fi xi का यूज नहीं है ना, fi into xi का यूज नहीं, xi का तो है यूज, xi कैसे यूज है di कैलकुलेट करने के लिए, बट कहीं भी fi into xi का यूज नहीं है। तो स्टूडेंट्स दैट मींस ये वाला जो कॉलम है ये हम मेरे यूज का नहीं है जब भी मैं assumed mean मेथड अप्लाई करूंगा। सो फिर क्या निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पे तो क्वेश्चन सेव करना होगा स्टूडेंट्स, आपको क्या करना, नेक्स्ट di कैलकुलेट करना, और di का फॉर्मूला स्टूडेंट्स xi माइनस क्या स्टूडेंट्स xi माइनस a। अब बेटा ये a क्या है, देखो a का नाम सुनो, a का नाम क्या बेटा, assumed mean, assume का मतलब होता है अपनी तरफ से assume करना होता है, मानना होता है अपनी तरफ से। सो आप a और mean, तो यानी कि जितने भी हमारे ये xi है, और a कहां से मानना है, हमेशा xi से मानना है, fi से नहीं मानना, कहां से मानना है बेटा, xi के अंदर से मानना है। तो a आपको assume करना अपनी तरफ से, कोई भी वैल्यू assume कर लीजिए, देखिए xi कितना है 2.5, 7.5, 12.5, 70, इस एग्जांपल में क्वेश्चन में अलग वैल्यूज हो सकती हैं आपने ना ये, तो यहां से आप a को कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। सपोज करो मैंने a को एज्यूम किया सॉल्यूशन में 12.5 एज्यूम किया, कितना एज्यूम कर लिया, 12.5 एज्यूम कर लिया। व्हाट इज माय पॉइंट स्टूडेंट्स, सो जैसे मैंने 12.5 इसको एज्यूम किया तो फॉर्मूला क्या आएगा, xi माइनस a, यानी कि फर्स्ट वैल्यू क्या है, तो 2.5 माइनस 12.5, 2.5 minus 12.5, स्टूडेंट्स आपका माइनस 10 मिलेगा। फिर नेक्स्ट बेटा 7.5, नेक्स्ट वैल्यू है 7, तो आप 7.5 में से 12.5 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, वी गेट हियर -5। नेक्स्ट 12.5 में से 12.5 को माइनस करेंगे तो इसके लिए वैल्यू कितनी है 0। फिर 17.5 में से 12.5 को वैल्यू कितना है 5। तो स्टूडेंट्स आप देखिए जो आपने a माना था उसके सामने का जो डेविएशन है वो 0 आएगा, और उससे ऊपर के जितने भी डेविएशन है वो नेगेटिव आएगा, उससे नीचे के जितने भी डेविएशन है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन की आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी कि आपने क्वेश्चन को ठीक किया है। गॉट इट, di आ गया, उसके बाद क्या करना बेटा, di आ गया, क्या करना है आप फॉर्मूले में देखिए fi di करना है, तो जो नेक्स्ट न्यू कॉलम यहां पे बनाना है वो क्या करना है fi di, तो इनका मल्टीप्लाई होगा fi एरा di एरा -3 into 10 या -30, 5 5 से 25, 2 2 0 10 ये हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, a अपने पास है समेशन ऑफ इंटर टोटल करेंगे, समेशन ऑफ जब हम इंटर टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ fi di। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू फॉर्मूला में डिवाइड करो और a में प्लस करो, यू विल गेट योर आंसर। व्हाट इट स्टूडेंट्स, सो ये हमारा सेकंड मेथड हुआ assumed mean मेथड। नाउ फॉर द थर्ड मेथड व्हिच इज स्टैक डेविएशन मेथड, ये थोड़ा सा आगे है बेटा। आप देखेंगे यहां पे नई ये तो आ गया बेटा ये तो आपको पता ही बेटा assumed mean होगा। अब नेक्स्ट जो यहां पे न्यू आया है ui आया है ना, यहां पे ui का फॉर्मूला है आपका। सो ui को बोलते हैं स्टैक डेविएशन, सिंपल di डेविएशन, ui इज कॉल्ड स्टैक डेविएशन। So ui का फॉर्मूला जो होगा इट्स फॉर्मूला इज di/h। दैट मींस ये आपने di यहां से कैलकुलेट किया, di कैसे कैलकुलेट किया था आपने, xi माइनस a को इसको आपने x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये h क्या है, h इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल,
क्लास इंटरवल का साइज होगा। दैट मींस आप देखेंगे क्लास इंटरवल है 0 से 5, 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, उनका साइज कितना है? दैट मींस डिफरेंस कितना है पर 5 का डिफरेंस है। सो h की वैल्यू 5 है इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या निकालना स्टूडेंट्स आप देखिए di कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं स्टेप डेविएशन, सो fi * di की कोई नीड नहीं है, तो इसको हम यहां से रख कर देते हैं, इसको नीड नहीं है निकालने की। यहां तक क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। हमें नेक्स्ट di के केस में क्या निकालना है? ui का फॉर्मूला क्या होता है? di का। तो यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करने के लिए आपको di को कैलकुलेट करना ही करना होगा, है ना। नेक्स्ट एक कॉलम हो जाएगा ui, इनको क्या करना है? h से डिवाइड करना है। h की वैल्यू 5 है, तो -10/5 -2 -5/5 -1 0.505। तो क्या करना है आपको? fi into ui का मल्टीप्लाई करना है। सो fi into -3 into -6 -5 into 5 2 into 0 0 10। इनका समेशन करेंगे, यू गेट समेशन ऑफ fi into y। आप समेशन ऑफ fi into ui आ गया, ये समेशन ऑफ fi है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपके पास है, इनको डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय h होल करना है। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। Now students, see the question number of 1 of this exercise 14.1. Question number 1 says that you have to find the mean of the number of plants per houses. A survey was conducted by the group of students in a locality of 20 houses. The survey of this guy is number of plants and number of houses. That is, अगर किसी हाउस में अगर 0 से लेकर 2 तक प्लांट्स है, तो ऐसे नंबर ऑफ हाउस अपने पास 1 है। 2 से 4 तक के जो नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, ऐसे नंबर ऑफ हाउसेस 2 है। जहां पर 4 से लेकर 6 तक नंबर ऑफ प्लांट्स है, वो नंबर 1 है। 6 से लेकर 8 तक नंबर ऑफ प्लांट्स है, वहां पर 5 हाउस है। इस तरीके से सर्वे आपको गिवन स्टूडेंट्स। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी के नंबर्स हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। आपको प्लांट्स का मीन नंबर, तो इसके बेटा लास्ट में लाइन के क्वेश्चन में which method did you use for finding the mean and why? कौन सा मेथड आप यूज यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट्स? For finding the mean we have 3 methods. First is direct method, second one is assume the mean method, and third one is step deviation method. So students, you can see that values are very less in this question, 0 to 2 to 4 4 to 6. So values are very small, so we can use here direct method. Okay students, direct method हम यूज कर सकते हैं because values are very small. अगर values हमारी greater होती, so we can use either assume the mean method or step deviation method. Got it my point students? Just like question number 2, see your notebook, book NCERT book, question number 2 जो आपके क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स 500 से 520, 520 to 540, 540 to 560, इस तरीके का आपका क्लास इंटरवल। So values are very greater in that question, so we can use in that question either step deviation method or assume the mean method. What is my point students? So students, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप मेथड यूज करें ना, उस मेथड को यूज करते हुए आप माइंड के अंदर एक समरी बना लीजिए कि आपको नीड क्या है ना, आपका फॉर्मूला क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे आपका जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मेरे पास ये है, मीन x bar is equal to summation of fi into xi upon summation of fi। स्टूडेंट्स ये मेरे पास फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, तो दैट मींस मुझे समेशन ऑफ fi चाहिए, यानी कि समेशन ऑफ fi का मींस हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो अपन ये निकालते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज fi। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, अगर नहीं लिखा है ना 20 हाउस इन ए लोकेलिटी, 20 गिवन भी है, अगर आप सम करना चाहे तो सम कीजिए, 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 5 9 9 + 6 15 15 + 2 17 17 + 3 20। गॉट इट? इस तरीके से आप क्वेश्चन में भी गिवन है डायरेक्ट 20 इस सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन 20 हाउस इन द लोकेलिटी। गॉट इट? नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया व्हाट इज द xi? xi क्या होता है हमारे पास? xi इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, और वी कॉल्ड इट एज क्लास मार्क, इसको क्लास मार्क भी बोल सकते हैं। सो वी राइट हियर xi, ठीक है। xi को अपन क्लास मार्क बोल लीजिए, मिड पॉइंट बोल लीजिए, एज यू विश, जो आपका बनता है xi। सो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बहुत ही सिंपल बताया था, क्या था इसका फॉर्मूला? इसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
So here students you can say lower limit is 0, upper limit is 2. So 0 plus 2, 2 and divided by 2, so we get here 1. Got it? The 0 में 2 ऐड करा 2 अगला 2 को 2 से डिवाइड किया तो we get here 1. Next 2 plus 4 6, 6 divided by 2 we get here 3. तो स्टूडेंट्स अगर आप नेक्स्ट के एडिशन डिवाइड करके भी नहीं निकालना चाहे तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए फर्स्ट निकाल लीजिए नेक्स्ट में कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है 2 ऐड कर दीजिए 3 plus 2 5 आएगा यहाँ पे 5 plus 2 7 आएगा 7 plus 2 9 आएगा 9 plus 2 11 आएगा 11 plus 2 13 सिंपल ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं गॉट इट फर्स्ट को रूल से निकाल लीजिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 और फिर चेक कर लीजिए डिफरेंस कितना है डिफरेंस क्या होता है साइज का मतलब h है ना h कहां पर यूज करते हैं स्टूडेंट्स इन द मेथड ऑफ स्टेप डेरिवेशन गॉट इट तो स्टूडेंट्स दीस आर द क्लास पार्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज में मुझे क्या कैलकुलेट करना है fi xi फॉर्मूले की नीड के अकॉर्डिंग से लिखते हैं fi xi तो नेक्स्ट हमारा जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा स्टूडेंट्स fi xi so right here fi xi that is you have to multiply the class part to its corresponding frequency so students 1 1 ja 1 3 2 ja 6 5 1 ja 5 7 5 ja 35 9 6 ja 45 54 11 2 ja 22 and 13 3 ja 39 but it's student multiply किया आपने इनका क्या गया मल्टीप्लाई 1 into 1 1 3 into 2 6 5 into 1 5 7 5 जा 35 9 6 जा 54 11 2 जा 22 13 3 जा 39 आपने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स अब क्या करना है आपको स्टूडेंट्स यहां पे परफॉर्म समेशन सो आपको इस पूरे कॉलम का समेशन करना है सिग्मा समेशन ऑफ fi into xi इनको ऐड कर लीजिए बेटा 1 plus 6 7 7 plus 5 12 12 plus 5 17 17 plus 4 21 21 plus 2 23 23 plus 9 32 carry 3 तो बेटा यहां पर नंबर लीजिए 3 plus 3 6 6 plus 5 11 11 plus 2 13 13 plus 3 16 सो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स 162 सो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए नाउ x bar is equal to summation of fi xi कितना है अपने पास 162 आया स्टूडेंट्स एंड समेशन ऑफ fi कितना है स्टूडेंट्स अपने पास 20 है कितना है 20 है सो इनको आप कर दीजिए बेटा डिवाइड तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है क्या करो ओनली 2 से डिवाइड करो नीचे एक 0 है ब्रैकेट 10 है 10 का मतलब अपन एक प्लेस के बाद पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं सो 2 से करो मैं 2 8 16 2 1 2 नीचे कितना होगा डिवाइड नीचे 10 10 का मतलब 1 डिजिट पे आपको पॉइंट 1 डिजिट ये ना सो our mean is 8.1 so students mean number of plants is 8.1 so 8.1 is the number of plants which will be the mean of this survey what is my point students any problem please write in the comment section if you have any problem now students we solve this question again by using assumed mean method assumed mean method is x bar is equal to a plus summation of fi di upon summation of fi now we consider what is the assumed mean so let assumed mean a is equal to अब देखो बेटा assumed mean आपको कैसे assume करना तो आप assumed mean हमेशा x से कैलकुलेट करेंगे कहां से देखेंगे स्टूडेंट्स xi से तो xi देखो कितना 1 3 5 7 9 11 तो इन xi में से आप कोई भी नंबर लेके assume कर सकते कोई भी नंबर लेके लेकिन जनरली हम क्या करते हैं हमेशा हम बिटवीन वाला पॉइंट चेक करते हैं मिडिल वाला पॉइंट चेक करते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा मिडिल वाला देखो अगर आप देखोगे यहां पर जो 7 है 7 है ना ये 7 जो नंबर है ये पूरे xi का मिडिल है इससे ऊपर भी 3 नंबर है इसके नीचे भी 3 नंबर है ठीक है जनरली आप कर तो कोई भी नंबर सकते हो पर हम क्या करेंगे जनरली जो मिड वाला पॉइंट होगा उसको हम assumed mean करेंगे कहां से करेंगे यहां बेटा स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं assumed mean will be assumed from the column of xi वाले कॉलम में से ही assume किया जाएगा सो कितना मैंने assume कर लिया यहां पर xi a को 7 assume कर लिया है ना अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है di स्टूडेंट्स आपको पता है di क्या होता है di का फार्मूला तो अब देखो ये मेरे को नीड नहीं है fi into xi की तो इसलिए मैंने इस वाले पोर्शन को रफ कर दिया ये वाला पोर्शन रफ कर दिया हमने नेक्स्ट हम बनाते हैं di का di that means डेरिवेशन इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट xi minus a xi ये रहा 1 पहला a कितना होगा मैंने 7 तो
तो स्टूडेंट्स अगर मैं 1 में से 7 को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा -6। फिर नेक्स्ट है 3 में से 7 करा माइनस तो 4, 5 में से 7 किया तो -2, फिर ये 7 में से 7 किया 0। तो स्टूडेंट देखो जहां पे भी आप एज्यूम्ड मीन मानेंगे उसके सामने वाला आपका डेविएशन 0 आएगा। फिर 9 - 7 2, 11 - 7 4, 11 - 7 और 30 - 7 6। और एक बात और ध्यान रखिए कि 0 से ऊपर जितने भी डेविएशन होंगे वो सब नेगेटिव आएंगे और 0 से नीचे वाले डेविएशन हमेशा पॉजिटिव आएंगे। और फिर डी आई आ गया। नेक्स्ट कॉलम आपको क्या बनाना है स्टूडेंट्स, fi into di। जैसे वहां पर आपने fi into xi बनाया था, ऐसे यहां पर बनाना है स्टूडेंट्स fi into di, fi into di। सो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव टू डू इन दिस कॉलम, आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। जैसे वहां पे आपने fi into xi का किया था, यहाँ पे fi into di का। So 1 into -6 -6, 2 into -4 -8, 1 into -2 -2, multiply 5 into 0 0, 6 2 is 12, 2 4 is 8, 3 6 8। हो गया बेटा। अब मुझे इनका सम करना है। बेटा आप देखोगे इनका सम करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड मैं आपको बताता हूं, बिकॉज़ सम ऑफ नंबर्स आर नेगेटिव एंड सम आर पॉजिटिव। तो आप क्या करो, जो नेगेटिव वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर लो और पॉजिटिव वालों को एक साथ ऐड कर दो। 0 को ऐड करने में कोई मीनिंगलेस है। 0 को अब किसी भी नंबर आप 0 ऐड करते हो सेम नंबर होता है। स्टूडेंट -6 -8 -14 एंड -2 -16, ये -16 आएगा। ये कितना आएगा, 12 + 8 20, 20 + 18 38। क्या किया मैंने, माइनस वालों को एक साथ ऐड किया, पॉजिटिव वालों को एक साथ स्टूडेंट्स का। और जो ये दो नंबर है इनको आपस में भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा, जब अपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो 38 में से 16 आपको जाएगा, कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, आएगा 22। सो इज समेशन ऑफ fi di 20। समेशन ऑफ fi di कितना, ये कितना आ गया बेटा 22। ठीक है, ये कैलकुलेशन होगी, फिर आप यहां से इसको रख दो। गॉट इट। सो समेशन ऑफ fi का अपने पास 20 है। बस नेक्स्ट, तो यानी कि हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या किया, जो हमारा fi into xi था वो नहीं करना, वो we introduced two new columns. First is for di deviation which is calculated by xi into a, and second one is for multiplication of frequency and the corresponding deviation, that is fi into di. Now students apply the formula x bar is equal to a की वैल्यू अपन 7 की है, कंसीडर समेशन ऑफ fi di, समेशन ऑफ fi di है 22 और समेशन ऑफ fi कितना है स्टूडेंट्स 20 है। तो स्टूडेंट्स यू कैन चेक हियर 7 प्लस बेटा 22 डिवाइडेड बाय 20। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करना तो भूल जाइए, यहाँ पे 10 है, केवल 2 से डिवाइड कीजिए। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 2 1 2 2 1 2 नीचे कितना है 10। 10 का मींस क्या करना है आपको 1 यूनिट पर लेस पे आपको डेसिमल पॉइंट मार्क करना है ना। 10 से डिवाइड करने में 1 यूनिट के लिए, 100 से 2 यूनिट के लिए, 1000 से करेंगे तो 3 प्लेसेस के लिए। तो कितना है बेटा 7 प्लस 1.1। स्टूडेंट 7 में 1.1 ऐड करेंगे तो 7 में 7.0 1.1 1 7 प्लस 1 8। This is our addition 8.1. So students, this is your mean by the assumed mean method. Got it my point students?